Okay. Good morning, students. In last lecture, we have studied the basic structure of HTML5. है ना? The basic structure of HTML5 is like, है ना? We are saying that exclamatory mark doc type HTML. This is the first tag of your HTML5 program. Then we are including the HTML tag, which indicates that this is a HTML program. Then we are including a head tag, which said that it is a head tag in which we can include a header information into that, such as we can include a title of the web page, है ना? Title, and between front slash title we are including a title. Suppose first page, this will appear on the title bar of the web page, है ना? And then front slash head. Then the main tag that is called as a body tag. In this body tag we are including the content which we want to display on the web page, है ना? जो content आपका web page पे display होगा, that content we can display or we can add into the body and front slash body, and after that we are closing the HTML tag, है ना? This is the first program of your, or the basic structure of your HTML5 program. Then we have seen the attribute, है ना? Tag we can include in a angular bracket, opening angular bracket, and closing angular bracket, that we have studied in last lecture. Then this is called as a attribute, है ना? We can add a attribute or the extra information about the tag or the extra feature of your tag into the starting tag, है ना? There are two types of tag, that is called as a container tag and empty tag, है ना? This is when the tag having the starting tag as well as the ending tag, then it is called as a container tag, है ना? So in starting tag we are including the attribute, है ना? What is means by attribute? Last lecture में देखा था हमने, है ना? That is the extra information about the tag, or to decorate your web page in a different manner we can use the attributes, है ना? So in starting tag we are writing, suppose यहाँ पे body, after that I am giving a space and then I can write this is bg color, है ना? This is called as a attribute equal to green. This is called as a value. ये क्या आपका? That is value. So this is the attribute and this is called as a value for that attribute. So when I'm saying that bg color equal to green, it will give a background color to your web page, है ना? The next, suppose और एक attribute आपको add करना है, then again give the space and write down the attribute and is equal to the value of that attribute. Then what I have written, this is my first web page. This is the कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, जो कंटेंट आपका वेब पेज में डिस्प्ले होगा, दैट वी कैन राइट बिटवीन बॉडी एंड फ्रंट स्लैश बॉडी, एंड लास्टली वी आर क्लोजिंग द टैग दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट स्लैश HTML. ठीक है? देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द text formatting elements, है ना? The text formatting elements is used to make a document look attractive, thereby enhancing its appearance, है ना? What is the use of text formatting tag? That is to make the web page attractive, है ना? The main aim of your website is to attract the users, है ना? तो users को attract कैसे करेंगे हम लोग? With the help of this टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. अगर आपका वेब पेज अट्रैक्टिव है तो ही यूजर्स उसको क्या करेंगे? व्यू करेंगे, है ना? So there are different text formatting tags which are included in HTML5. We have studied, I think, 5 tags we have studied. The first tag is called as a B tag, है ना? This displays a text in a bold format or in the bold face, है ना? बोल्ड में आपका क्या होगा? टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल 11 कॉमर्स, ये आपको कैसे दिख रहा है? दैट इज इन अ डार्क मैनर, है ना? डार्क में आपको वो क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ बोल्ड फेस, है ना? बी टैग इज बी टैग. Then next tag that is called as a I tag. I tag displays the text in a italic format.
जो आपका टेक्स्ट है वो कैसे डिस्प्ले करेगा, इन इटैलिक फॉर्मेट, जस्ट इन अ स्लांटिंग फॉर्मेट, है ना, स्लांटिंग ऐसे टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इटैलिक फॉर्मेट। ठीक है, देन यू डिस्प्लेस द टेक्स्ट विथ अंडरलाइन, है ना, फॉर एग्जांपल 11 कॉमर्स को यहाँ पे क्या गया, अंडरलाइन आ गया। व्हेन वी आर इंक्लूडिंग अ 11 commas in u and front slash u, then it will get displayed as this, it will get displayed the underline, है ना। The next fourth tag, that is called as a small tag, है ना, it displays the text in स्मॉल फॉन्ट साइज, है ना, आपका टेक्स्ट है वो स्मॉल फॉन्ट साइज में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। लेकिन कितने स्मॉल साइज में डिस्प्ले करेगा, कितने स्मॉल साइज होगा, दैट इज वन फॉन्ट साइज स्मॉलर देन द सराउंडिंग टेक्स्ट, है ना। जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट, सपोज अगर सराउंडिंग टेक्स्ट कितना है आपका 12 है, तो अगर आपने वहां पे स्मॉल टैग यूज किया तो इट विल डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन 11 फॉन्ट साइज फॉर्मेट, है ना। सो वन फॉन्ट साइज स्मॉलर, एज नेम सजेस्ट स्मॉल, तो स्मॉल में डिस्प्ले करेगा, लेकिन कितना स्मॉल, दैट इज वन फॉन्ट साइज स्मॉलर। then next tag है, that is opposite of that, that is called as a big tag, है ना। it displays a text in big font size, है ना, big font size में डिस्प्ले करेगा, लेकिन कितना big, that is one font size big than the surrounding text, one font size big than the surrounding text। then next tag है, that is called as a sup, है ना। this tag is used to display a text in a सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म, है ना। व्हाट इज मीन्स बाय ये सुपरस्क्रिप्ट, दैट इज सपोज आप लोग दिखते हो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे जो भी आप लिखते हो, दैट इज ऊपर जा रहा है। सुपरस्क्रिप्ट में अगर आपका क्या है, टेक्स्ट है, इन दैट केस वी आर यूजिंग अ टैग दैट इज कॉल्ड एज अ एसयूपी। which tag is used, sup। and next tag है, that is called as a sub, that is called as a subscript, है ना। अगर आपको half a height lower than the normal text display करना है, then we are using a tag that is called as a sub। it will display the text in a subscript format। जैसे आप लोग H2O लिखते हो, है ना, so H2O में 2 कहाँ पे आपका, that is half a height lower than the normal text, then we can use a tag that is called as a sub। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, है ना, सपोज आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आपको डिस्प्ले करना है यहाँ पे, है ना। ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है आपको, क्या लिखा है मैंने, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे जस्ट मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये टू कहाँ पे है आपका, दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर स्क्रिप्ट, है ना। टू कहाँ पे गया है, एड हाफ अ हाइट अपर देन द नॉर्मल टेक्स्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर, है ना, ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, है ना। सो ऐसे अगर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो विच टैग इज यूज, दैट इज SUP टैग इज यूज। सो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है इसको, सपोज एक्स प्लस वाई आपका नॉर्मल है, तो आई एम राइटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट है पूरा आपका, है ना, तो ब्रैकेट एक्स प्लस वाई देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर है आपका, यहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिस्प्ले करना है ना। तो स्क्वायर ऊपर जा रहा है तो उसके लिए टैग कौन सा आएगा, टू ऊपर जाएगा तो टैग इज SUP। देन टेक्स्ट कौन सा ऊपर जाएगा आपका, दैट इज टू, एंड देन SUP टैग क्लोज, तो आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, आपका क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली सपोज आई वांट टू डिस्प्ले, सपोज आप अभी कौन सा क्लास है आपका, दैट इज 11th, है ना। सो मुझे 11th डिस्प्ले करना है, तो 11th आप लोग कैसे लिखते हैं, 1 1, एंड देन TH आपका कहाँ पे जाता है, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट में जाता है ना। सो यहाँ पे देखो 11th 1 1 आपका कैसा है, नॉर्मल है, एंड देन TH आपका कहाँ पे जाना है आपको, सुपर स्क्रिप्ट। तो टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन सुपर स्क्रिप्ट विच टैग इज यूज, दैट इज SUP, है ना। देन
क्या टेक्स्ट है आपका? दैट इज टू डिस्प्ले टू द सुपरस्क्रिप्ट, दैट इज टी एच. सो आई एम राइटिंग हियर टी एच एंड देन फ्रंट स्लैश एस यू पी, है ना. एंड देन सपोज यहाँ पे बी आर लेते हैं, है ना. अभी देखो जो भी चेंजेस किए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल, देन सेव, एंड देन ब्राउजर में जाके रिफ्रेश. अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है देखो, दैट इज 11th, है ना. टीएच आपका कहाँ पे गया, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. समझ में आ रहा है. फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस यू पी टैग, दैट इज टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन अ सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म, है ना. जैसे और अगर आपको आप लोग डेट लिखते हो, है ना, वी आर राइटिंग अ डेट, सपोज यू हैव टू राइट योर बर्थ डेट, तो सपोज क्या लिखेंगे, 15th ऑफ. अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल में लिख रही हूँ तो क्या डिस्प्ले होता है देखो, है ना. फाइल सेव, यहाँ पे जाके रिफ्रेश. देखो 15th कहाँ पे है आपका, दैट इज नॉर्मल टेक्स्ट है. अभी आपको ये कहाँ पे लेके जाना है, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, है ना. सो फॉर दैट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 15th के लिए आई वॉन्ट टू राइट दैट इज एस यू पी, देन for th, that is front slash sup. So sup tag used to display a text in a superscript format. आ रहा है यहाँ पे 15th August 1985. ठीक है. देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है आपको, H2SO4, है ना. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू हाफ हाइट लोअर डिस्प्ले हो रहा है. सिमिलरली फोर भी यहाँ पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, हाफ हाइट लोअर देन द normal text. This is called as a subscript format. And to display a text in a subscript format, we are using a tag that is called as SUB, है ना. Subscript, SUP for superscript and SUB for subscript, है ना. तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे उसको. फर्स्ट क्या लिखना है आपको, एच कैसे आपका नॉर्मल है, H2SO4. सो एच नॉर्मल है, देन टू आपका कहा जा रहा है, दैट इज इन द सबस्क्रिप्ट. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ टैग SUB, then I am writing 2, then SUB tag close, because next जो आपका टेक्स्ट है दैट विल बी अ नॉर्मल टेक्स्ट, है ना. सो H2SO, SO कैसे आपका, दैट इज नॉर्मल है. सो आई एम राइटिंग SO नॉर्मली जैसे आप लिखते हो. एंड देन फोर कहाँ पे है अगेन, दैट इज टू द सब्सक्रिप्ट फॉर्मेट, है ना. तो सब्सक्रिप्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए विच टैग वी आर यूजिंग, दैट इज SUB. So I am writing here SUB, then 4, and then SUB tag close. So यहाँ पे क्या आएगा, SUB tag close. Then यहाँ पे क्या लिखोगे, PR. Again you have to save this. जो भी changes you have to save, and then in Google Chrome we are going to refresh it. यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अभी देखो, H2SO4, है ना. सिमिलरली आई वॉन्ट टू डिस्प्ले H2O, है ना. क्या डिस्प्ले करना है मुझे, H2O. तो H2O के लिए कैसे लिखोगे अभी आप लोग बताओ मुझे, फॉर H2O, है ना. सो H नॉर्मल है, देन टू कहाँ पे जा रहा है आपका, दैट इज एट द सबस्क्रिप्ट, है ना. सो टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट SUB, देन टू, देन SUB टैग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज, and then write down the normal O, and then यहाँ पे I will put the BR tag. File, save, यहाँ पे जाके refresh. Display हो रहा है, that is H2O. 2 is displaying at subscript form. So we are using a tag that is called as a SUP and SUB. Clear है, SUB and SUP दो भी टैग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट.
है ना. नेक्स्ट टैग्स है. नेक्स्ट tag is called as a big tag and small tag. यहाँ पे देखो big and then I am using a tag that is called as a small. So big अभी आपको बताया for example क्या बताया था आपको big it will display a text in a big font size. Big मतलब कितना one font size larger than the previous text. So I am writing big then MK junior college suppose junior college then file सेव यहाँ पे जाके आउटपुट देखो इट विल डिस्प्ले ऑन इन अ बिग फॉन्ट है ना H2O का फॉन्ट देखो आप लोग और ये मैंने MK जूनियर कॉलेज लिखा है उसका फॉन्ट देखो है ना वन फॉन्ट साइज लार्जर वो क्या कर रहा है डिस्प्ले कर रहा है सो दिस इज द यूज ऑफ द बिग टैग दैट इज इट विल डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन अ big font that is one font size larger than the surrounding text. Next we have to study the small tag है ना small tag is used to display a text one font size smaller than the previous text. So MK Junior College. है ना? Again, I am writing the same text, small tag. Then जो भी text आपको लिखना है, we can write that text. I am writing here that is MK Junior College, and then front slash small, है ना? Then file save and then यहाँ पे जाके that is रिफ्रेश है ना सो अभी देखो ये बिग टैग का है आउटपुट एंड दिस इज द आउटपुट फॉर द स्मॉल टैग है ना सो ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है आपको एंड ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है आपको बताओ आप लोग बताओ मुझे ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है लार्ज साइज में डिस्प्ले हो रहा है एंड ये उसका एक फॉन्ट साइज कम में क्या हो रहा है आउटपुट आपको क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है सो getting it big tag and small tag we are using in your web page or a website that is big and small tag ठीक है then next tags है suppose यहाँ पे next tags we have to study that is first tag that is called as a del है ना del tag is used to display a text in a deleted format है ना deleted format में अगर आपको text display करना है then we are using a tag that is called as a del suppose del then MK junior college and then यहाँ पे क्या हो रहा है आपका that is del tag close है ना सो यहाँ पे आउटपुट देखो फाइल सेव एमके जूनियर कॉलेज को बीच में से यहाँ पे देखो लाइन आ गया दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्राइक थ्रू लाइन थ्रू द टेक्स्ट दैट इज इट विल डिस्प्लेड एज अ डिलीटेड टेक्स्ट है ना डोंट डू दिस ऐसे आपको लिखना है वेब पेज में कहाँ पे तो डोंट डू दिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो ऐसे वी कैन डिस्प्ले अ डिलीटेड टेक्स्ट एंड फॉर द डिस्प्लेइंग द डिलीटेड टेक्स्ट वी आर यूजिंग अ टैग दैट इज कॉल्ड एज अ del क्या डिस्प्ले टैग है del tag is used to display a text as a deleted text then suppose I am writing here br to go to the next line or to break the line हम लोग क्या यूज करते हैं br tag यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट टैग है दैट इज कॉल्ड एज अ मार्क टैग है ना MARK मार्क टैग इज यूज टू डिस्प्ले द मार्क मार्क टेक्स्ट है ना जैसे आप लोग मार्किंग करते हो ना हाइलाइटर रहता है ना जैसे उसको हाईलाइट करते हो हाईलाइटेड टेक्स्ट अगर आपको डिस्प्ले करना है किसी वर्ड को आप लोग क्या करते हो हाईलाइटेड करते हो तो वैसे अगर हाईलाइटेड करना है तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो दैट इज द मार्क टैग है ना सपोज यहाँ पे देखो मार्क इट विल डिस्प्ले अ टेक्स्ट एज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट मार्क टैग क्लोज फाइल सेव यहाँ पे जाके देखो क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको MK जूनियर कॉलेज क्या हो गया हाईलाइटेड हो गया विथ येलो कलर जनरली द हाईलाइटेड जो भी टेक्स्ट ये रहता है मार्किंग रहता है वो जनरली येलो कलर में रहता है ना
सो आपका जो भी टेक्स्ट है विद इन मार्क एंड फ्रंट स्लैश मार्क, इट विल बी डिस्प्लेड एज अ highlighted with yellow color, है ना. So this is the use of mark tag to highlight the text. Highlighted text display करना है तो आप लोग क्या टैग यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्क टैग. ठीक है. नेक्स्ट टैग है दैट इज कॉल्ड एज अ इंस, INS. इंस मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट. अगर आपको क्या डिस्प्ले करना है, इंसर्टेड टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करना है, मतलब ये इंसर्टेड है HTML डॉक्यूमेंट में, ऐसे डिस्प्ले करना है, देन आई कैन यूज अ INS टैग. कौन सा टैग है, INS. इट विल बी displayed as a inserted text. Suppose again MK Junior College, and then front slash INS. I'm putting here BR tag. So INS tag, file, save. यहाँ पे जाके refresh. Inserted मतलब it will be displayed with the underline, है ना. So it is called as a, this text is inserted into the document. That is the use of INS tag. Inserted text. ऐसे करके आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. So these are the text formatting tags in HTML5. There are again different text formatting tags, but for 11th standard we have to study these, all these text formatting tags in HTML5. We have studied which tags, है ना, which are the text formatting tags. First tag is called as a B tag, then I, then U tag, then SUP, then SUB tag, then big tag, then small tag, then DEL. The next tag is called as a mark tag, then INS. These all are the text formatting tags